بچوں کی لاٹری نکل آئی، اسکولوں میں 3 ماہ کی طویل تعطیلات کا اعلان۔ 22 مئی سے اسکولوں میں تالے لگ جائیں گے، 24 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ پنجاب کابینہ کی مہر لگ گئی، 94 دنوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر تعلیم نے بھی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ 94 دنوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر تعلیم نے بھی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ بچوں کی لاٹری نکل آئی، اسکولوں میں 3 ماہ کی طویل تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ تعلیم اب سرکاری نہیں رہے گی، اسکولوں کے بعد کالجز بھی پرائیویٹ ریڈار پر۔ ہائر ایجوکیشن میں نجکاری کی نئی لہر، کالجز آف ایمیننس کا قیام منظور، ہر تحصیل میں کالج آف ایمیننس بنے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے خاکہ پیش کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت 5380 سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے بعد سرکاری کالجز کی بھی نجکاری ہوگی۔ پنجاب حکومت نے پالیسی کو سرکاری کالجوں تک توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہائر ایجوکیشن نے تمام تحصیلوں میں کالج آف ایمیننس کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ پالیسی کے تحت منتخب پبلک کالجز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے حوالے کیا جائے گا۔ ہر تحصیل میں ایک ماڈل کالج کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ کالجوں کا انتخاب مخصوص معیار کی بنیاد پر موجودہ اداروں سے کیا جائے گا۔ HED نے 10 لازمی معیارات کا خاکہ پیش کر دیا۔ خاکے میں تعلیمی شہرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی، طلباء کی کارکردگی شامل ہے۔ خاکے میں تحقیق اور اختراع، جدید انفراسٹرکچر، لیبارٹریز شامل ہیں۔ لائبریریاں، سہولیات، صنعت کے روابط، انٹرنشپس بھی خاکے میں شامل ہیں۔ سفاک کتے بے بس انتظامیہ میں اسپتال میں کتے کے کاٹنے سے ایک اور نوجوان کی موت، 18 سالہ زین علی دم توڑ گیا۔ میں اسپتال میں اب تک 4 مریض جان کی بازی ہار چکے۔ پنجاب میں 2 سال کے دوران 4,30,000 سے زائد افراد کو کتوں نے کاٹا۔ پنجاب میں کتے کاٹے سے ہونے والی خطرناک بیماری ریبیز ایک اور جان لے گئی۔ میو ہسپتال میں 18 سالہ زین علی ریبیز بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران کتے کے کاٹنے سے میو ہسپتال سے یہ چوتھی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ جواں سالہ زین علی کو چند دن قبل تشویشناک حالت میں میو ہسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں کتے کاٹے کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران 4,30,000 سے زائد افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ داتا دربار اسپتال کا انتظام محکمہ اوقاف کے حوالے، پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں بھرتیوں پر پابندی ختم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے، ایکسل لوڈ مینجمنٹ، نیو انرجی وہیکل انشورنس کمپنی سمیت متعدد منصوبوں کی منظوری۔ 150 cc تک موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس ختم۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر وزیر اعظم اور پاک فوج کو خراج تحسین۔ صوبائی کابینہ نے 22 مئی سے 24 اگست تک اسکولوں میں سرگرمیوں کی چھٹیوں کی منظوری بھی دے دی۔ صوبائی کابینہ نے 22 مئی سے 24 اگست تک اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کی منظوری بھی دے دی۔ اجلاس میں پنجاب آٹزم اسکول اینڈ ریسورس سینٹر ترمیم ایکٹ 2026 کے ڈرافٹ بل کی منظوری دے دی۔ پنجاب کنٹرول آف خونڈا اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی گئی۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی تنظیم نو اور استعداد کار بڑھانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں انسداد پرتشدد انتہا پسندی ایکٹ 2025 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ جدید صوبائی ٹریفک مینجمنٹ اینڈ کمانڈ سینٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ داتا دربار ہسپتال کا انتظام محکمہ اوقاف کے زیر کنٹرول لینے کی منظوری دی گئی۔ گارمنٹ سٹی اور مختلف انڈسٹریل زونز میں پلاٹوں کی لیز اور کرائے کے قواعد و ضوابط کی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں اسپیشل اکنامک زونز کی سہولت کے لیے LDA لینڈ یوزر رولز میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی و نجکاری کے 33ویں، 34ویں اور 35ویں اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق کی بھی منظوری دی گئی۔ سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط برقرار، 25 کلو واٹ تک سسٹم لگوانے کے لیے نیپرا سے لائسنس لینا ہوگا۔ سولر لگوا کر کنیکشن لینے والے صارفین کو آن لائن درخواست دینا ہوگی۔ رواں ماہ نیپرا کی جانب سے لائسنس کی شرط ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ شہر سمیت ملک بھر میں نیٹ بلنگ پروجیکٹ کے تحت سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط برقرار ہے۔ 1 سے 25 کلو واٹ تک سولر سسٹم لگوانے والے صارفین کو نیپرا سے لائسنس لینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق 25 کلو واٹ تک فیس معاف کی گئی ہے۔ جنریشن لائسنس کے اختیارات نیپرا کے پاس ہیں۔
तरमीम के तहत सोलर सिस्टम लगवा कर कनेक्शन लेने वाले सार्फिन को ऑनलाइन दरखास्त के साथ लाइसेंस के हुसूल के लिए भी नेपरा से रजू करना होगा। नेपरा लाइसेंस के बगैर ऑनलाइन पोर्टल पर सोलर सार्फिन दरखास्त जमा नहीं करवा सकते। ताहम नेपरा को जनरेशन लाइसेंस भिजवाने पर सार्फिन की दरखास्त मंजूर होने लगी है। वाज़ेह है कि वज़ारत पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक लाइसेंस की शर्त खत्म करने की दरखास्त की थी। ज़राए के मुताबिक नेपरा की जानिब से लाइसेंस की शर्त खत्म करने का हतमी फैसला किया जाएगा। बिजली चोरी की बुनियाद पर टारगेट लोड शेडिंग अल्तवा का शिकार बिजली चोरी का सबब ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद कर दिया जाएगा। मटेरियल की खरीदारी का अमल दोबारा शुरू। ट्रांसफार्मर्स समेत दीगर मटेरियल की खरीदारी का टेंडर कर दिया गया। अब 1 अरब 50 करोड़ से सामान की तनसीब होगी। नेस्को में 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग करने का मेगा प्रोजेक्ट अल्तवा का शिकार हो गया। मंसूबे के तहत ट्रांसफार्मर समेत दीगर अमलाक की खरीदारी और तनसीब का टेंडर मंसूख कर दिया गया। राय के मुताबिक लेस्को में 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर समेत दीगर अमलाक की तनसीब होगी, जिसके तहत लेस्को ने एक बार फिर मटेरियल की खरीदारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। लेस्को ने ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का मंसूबा बनाया, जिसमें 900-1300 केवीए जबकि 1300-200 केवीए के ट्रांसफार्मर्स को मंसूबे में शामिल हैं। मेगा प्रोजेक्ट के तहत बिजली चोरी का सबब बनने वाले ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद कर दिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। नए माली साल में यकसा तालीमी निज़ाम और तलबा की इस्तेदाद जांचने का प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के असेसमेंट के लिए 1 अरब 37 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने यकसा तालीमी निज़ाम और तलबा की इस्तेदाद जांचने का प्रोग्राम बनाया है। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 5 और ग्रेड 8 की असेसमेंट के लिए 1 अरब 37 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। फंड्स पहले सरकारी स्कूलों में तालिबात की हाजिरी बढ़ाने और बच्चियों की तालीम के फरोग के लिए माहाना वजीफा प्रोग्राम के तहत मुख्तस किए गए थे। मंसूबे का मकसद तालिबात की स्कूलों में 100% हाजिरी यकीनी बनाना था। हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद अब ये रकम ग्रेड असेसमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग, नताइज की तैयारी और इंतजामी अमूर पर खर्च की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इस इक़दाम से तालीमी मयार जांचने के निज़ाम को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तालिबात के वजीफा प्रोग्राम में फंड्स की मुंतकली पर मुख्तलिफ हलकों में तशवीश भी पाई जा रही है। बड़ी ईद पर सफाई के लिए बड़े फंड्स खर्च होंगे। सफाई ऑपरेशन पर 23 करोड़ खर्च करने की तैयारी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी का 2000 मशीनरी किराए पर लेने का फैसला। शहर के 9 टाउन्स में भारी मशीनरी तैनात की जाएगी। नशर टाउन 3 करोड़ 19 लाख, समनाबाद के लिए 2 करोड़ 94 लाख मुख्तस किए गए हैं। ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए गए। लाहौर 4 रोज़ा खुसूसी सफाई प्लान के तहत भारी मशीनरी किराए पर लेने का फैसला किया गया। 9 टाउन्स में 2000 से ज्यादा मशीनरी तैनात। अखराजात 23 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। 17 पंजाब अथॉरिटी का मौकिफ है कि मशीनरी खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज्यादा मौसर और कम खर्च है। लाहौर के लिए 979 डंपर, 330 एक्सकवेटर, 452 ट्रॉलियां और 199 लोडर किराए पर लिए जाएंगे। इस्लामाबाद टाउन में 6 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से 274 डंपर और 82 एक्सकवेटर फराहम किए जाएंगे। निशर टाउन के लिए 3 करोड़ 19 लाख, समनाबाद के लिए 2 करोड़ 94 लाख, गुलबर्ग टाउन के लिए 2 करोड़ 47 लाख फराहम किए जाएंगे। रावी टाउन के लिए 1 करोड़ 19 लाख, शालीमार टाउन के लिए 1 करोड़ 96 लाख और वाघा टाउन के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 13 मई से शहर में आर्जी मवेशी मंडियां फाल करने का ऐलान। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हुक्काम मुतहरिक। मंडियों के मकामात पर पानी, वाशरूम और लाइटों की तनसीब जारी। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 5 आर्जी और 1 मुस्तकिल मंडी समेत कुल 6 मंडियां कायम होंगी। ईद उल अजहा के पेश नजर 13 मई से लाहौर में आर्जी मवेशी मंडियां फाल हो जाएंगी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के तहत शहर में 5 आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जिसके लिए हुकाम की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। 3 रोज बाद लगने वाली मंडियों के लिए बाद मुकामात पर व्यापारी अभी से पहुँचना शुरू हो चुके हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी कैसर हबीब के मुताबिक ईद उल अजहा के लिए सगियां, वागा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, बरकी रोड, LDA सिटी और रायमंड में आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को मुस्तकिल बुनियादों पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए फाल रखा जाएगा। लाहौर में शाहपुर कांजरा सबसे बड़ी मंडी सेल पॉइंट डिक्लेयर हुआ। इसके अलावा 5 पॉइंट डिक्लेयर किए गए हैं, जिनमें सगियां, LDA और हमारा कैंट, रायवेंट और हमारा छठा पॉइंट है वाघा। ये 6 पॉइंट्स हैं और ये अभी 13 तारीख से इंशाल्लाह ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। COO के मुताबिक इन तमाम पॉइंट्स पर व्यापारियों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। शाहपुर कांजरा में चार्जेस मुआहदे के मुताबिक होंगे। जो शाहपुर मंडी है, क्योंकि ये परमानेंट मंडी है, लेकिन वो 10 दिन के लिए ये सेल पॉइंट डिक्लेयर किया गया है।
इसमें चार्जेस एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर लेगा, जो बाकी 5 पॉइंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और उनमें सहूलियात हर किस्म की दी जाएंगी। मंडियों में सिक्योरिटी के लिए पैरा फोर्स और पंजाब पुलिस तैनात होगी। महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122 और लाइव स्टॉक हुकाम भी अपनी खिदमात सरंजाम देंगे। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 30 परवासें मनसूख। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजाह, कुवैत, बहरीन, कतर जाने वाली 8 परवासें मनसूख। 20 परवासें घंटों ताखीर का शिकार हुई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 30 परवाजें मनसूख हुई। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर जाने वाली 8 परवाजें मनसूख। 20 परवाजें घंटों ताखीर का शिकार हुई। कराची एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 12 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 6 परवाजें मनसूख हुई। सियालकोट एयरपोर्ट और मुल्तान एयरपोर्ट से 2-2 परवाजें मनसूख हुई। लाहौर में रात गए मौसम की खराबी के बाइस अंदरून मुल्क जाने और आने वाली 20 परवाजें मुतासिर हुई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल से कराची जाने और आने वाली 6 परवाजें, कराची से लाहौर और इस्लामाबाद की 8 परवाजें मुतासिर हुई। मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर से 6 परवाजें मुतासिर हुई। वेलकम बैक। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पंजाब में रेलवे रूट्स की अपग्रेडेशन से मुतालिक अहम जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ का खुसूसी जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक दुनिया के जदीद तरीन रेलवे मॉडल्स का मुताला करने के बाद अपग्रेडेशन मनसूबों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत यह मनसूबा पूरे पंजाब को जदीद रेलवे नेटवर्क के जरिए आपस में मुंसलिक करेगा, जबकि इससे 8 करोड़ से ज़ायद शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा AI फाल मनसूबा सूबा बनाने का फैसला कर लिया। AI विजन 2029 की वर्किंग भी मुकम्मल कर ली गई। मुशीर अली मुस्तफ़ा डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब जल्द मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। मैडम ने बुनियादी तौर पे जो हमें हदफ दिया है वो ये दिया है कि 2029 तक पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा AI फाल यानी AI एनेबल्ड सूबा बनाना, बल्कि पूरे जनूबी एशिया का। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कितनी इम्पोर्टेंट समझती हैं AI के शोबे को और उनकी क्या प्रायोरिटी है इस हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उनकी सपोर्ट है। AI एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसने आने वाले वक्त में हर शोबे के अंदर इनकॉर्पोरेट होना है, और जितनी जल्दी कोई मुल्क या कोई सूबा इसकी अडॉप्टेशन में जितनी जल्दी करेगा वो मुस्तकबिल में उतना आगे निकल जाए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मीटिंग, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अज़मत महमूद की इजलास में शिरकत। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए डॉक्टर्स और नर्सिस की मुस्तकिल भर्तियों करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला सेहत इक़दामात के हवाले से वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला एडल्ट कार्डिक सर्जरी, वज़ीर आला प्रोग्राम बराए कैंसर पेशेंट्स और वज़ीर आला प्रोग्राम बराए स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से पब्लिक फीडबैक का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी, सर्विस का मयार बेहतर बनाने और मरीजों की आसानी के लिए बेहतरीन मॉनिटरिंग की अहमियत पर जोर दिया। लॉकडाउन से ताजरों की चीखें निकल गईं, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं निकल रही। नाबिल रिटेल की ताजरों को 10 बजे तक रिलीफ दिया जाए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो रही है। हुक्मरान मार्केट मईशत पर मुस्तकिल पॉलिसी बनाएं। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर मोहम्मद काशिफ की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मार्का हक पर कौम को मुबारकबाद पेश की। मार्का हक का जो जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें लाहौर की मार्केटों में झंडे भी लगाए गए, केक भी काटे गए, रैलियाँ भी निकाली गईं, कि मैं आज फिर अपने मुतालबात बताने से पहले मैं अपने तमाम कौम को, क्योंकि ये फ़तह मुल्क पाकिस्तान की फ़तह थी, अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने हमें मार्के हक की फ़तह नसीब फरमाई।
मुजाहिद मकसूद बट का कहना था कि होलसेल मार्केटों को 8 बजे बंद होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटेलर्स परेशान हैं। होलसेल मार्केटों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 8 बजे भी अगर बंद हो। रिटेलर मार्केटें, जो हमारे रिटेलर हैं, वो सख्त परेशान हैं। लोगों से ना तो अपनी लेबर की तनख्वाहें निकल रही हैं और ना ही उनसे किराए निकल रहे हैं, और आए रोज कभी हुकूमत की तरफ से टाइम जल्दी कर दिया जाता है, कभी हुकूमत की तरफ से 2 घंटे बढ़ा दिए जाते हैं। और खुदारा ताजर को मजाक मत समझें, ये ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि पुलिस सिर्फ रात 8 बजे मार्केट बंद करवाने आती है और दुकानदारों को तजलील करती है। रात को आज मीडिया 8 बजे के बाद 10 बजे आ जाए, 10 बजे आ जाए, मैं आपको स्टोर खुले हुए दिखाऊंगा, मैं आपको खोखे शटर गिरे हुए और उसके अंदर काम होता हुआ दिखाऊंगा, और वहाँ से पीरा को गुजरते भी दिखाऊंगा। अगर ये राइट साइड पे खोखा खुला है ना, तो वो लेफ्ट साइड पे देखते हुए गुजर जाएगा, जब वापस आएगा तो वो राइट को देखेगा, लेफ्ट को देखेगा ही नहीं। ये जो नाइंसाफ़ी है उसकी वजह से क्या हमारे ताजरों में भी एक दूसरे की लड़ाई शुरू हो गई है कि जी वो कमा रहा है तो मैं नहीं कमा रहा, लिहाजा ये पैरा फोर्स का जो तरीकाकार है उसको बदला जाए। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हम एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहते, मजबूर ना किया जाए। कैमरामैन आगा जैन के साथ सईद अहमद, सिटी 42। काशिफ चौधरी सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की ताजर रहनुमाओं के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर क़यादत का ईद उल अज़हा के लिए स्मार्ट लॉकडाउन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। ताजरान का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर कारोबारों की बंदिश ने ताजरों का माशी दिवालिया निकाल दिया है। मार्ग हक में शानदार फतह में फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब हुकूमत मईशत की तरक्की के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ बनाए। प्रेस क्लब में मुल्क की ताजर तंजीमों की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहनुमाओं का कहना था कि ताजरों का ईद कुर्बान के लिए खरीदा गया स्टॉक फरोख्त नहीं हो पा रहा। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद अशरफ भट्टी ने कहा, FBR इस्लाहात के नाम पर पॉइंट ऑफ सेल्स के नफाज, जुर्माना और गिरफ्तारियों के जरिए ताजरों को हरासा कर रहा है। छोटा ताजर जो ईद आ रही है वो बेचारे इतने परेशान है। मेरे पास लाहौर में अक्सर मार्केट के लोग आ रहे, भट्टी साहब खुदा रहा टाइम बढ़वाएं, फिर आप कोशिश करते हैं हुकूमत को टाइम फौरी बढ़ा देना चाहिए, बल्कि आज ही टाइम बढ़ाना चाहिए। 10-12 दिन तो रह गए ईद में, तो अगर ये नहीं बढ़ेगा तो ये जुल्म होगा ताजरों के साथ, अवाम के साथ। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर वकार अहमद मियाँ का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियाँ ताजरों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। जो ताजर दोस्त हुकूमत हो और ताजर उसमें परेशान हो। अगली बात मैं कह के बात ख़त्म करूँगा कि मुझे जितना अरसा भी हो गया ताजर सियासत में, मैं ये बात कहने पे आज मजबूर हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ताजर के ज़रिए इस मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। जब किसी मुल्क में तजारत ही नहीं होगी, ताजर खुशहाल नहीं होगा, तो वो मुल्क कैसे चलेगा। सदर कौमी ताजर एहतियात पाकिस्तान मलिक खालिद महमूद का कहना था कि इस्लाहात और तंजीम नौ के नाम पर ताजरों को बिला जवाज तंग किया जा रहा है। हम ये इनके हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ासकर पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, खुला टाइम दिया जाए ताजरों को, और ये जो पीरा फोर्स है इसके ख़िलाफ़ इसकी गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए। हमें ये फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। हम ताजरों को मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर निकलें और शटर डाउन की तरफ आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ तंजीम ताजरान आगा अब्दुल अफ्कार, जनरल सेक्रेटरी लाला यासर, नायब सदर मियां हारून, शहजाद अशरफ भट्टी शरीक हुए। सदर टेक्सटाइल ट्रेडर्स राना नदीम, अब्दुल वदूद दालवी, नासिर इंसारी, महबूब सरकी, SM अख्तर शरीक थे। कैमरामैन आगा जैन के साथ सईद अहमद, सिटी 42। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन की वालिदा की पोते की भर्ती और माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। लेडी कांस्टेबल रुखसाना हुसैन की सर्विस बहाली की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ फराहमी की हिदायत की। शहर के फुटबॉल के फ़रोग के लिए अहम कदम। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले यूएफा मास्टर ट्रेनर हैमिल्टन जॉनसन का फीम फुटबॉल एकेडमी मॉडल टाउन का दौरा। हैमिल्टन ने नौजवान खिलाड़ियों को खुसूसी ट्रेनिंग करवाई।
यूनिफा के मास्टर ट्रेनर हिमिल्टन जॉनथन ने सदर फेम फुटबॉल एकेडमी जिया आरिफ डोगर की खुसूसी दावत पर फेम फुटबॉल एकेडमी का दौरा किया और नौजवान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाई। सदर फेम फुटबॉल एकेडमी जिया आरिफ डोगर का कहना था कि हिमिल्टन जॉनथन जैसे क्वालिफाइड कोच के आने से हमारे मकामी कोचेस और बच्चों को इंटरनेशनल मयार की ट्रेनिंग मिलेगी। वो बहुत हैप्पी हैं यहाँ पे आके एटमॉस्फेयर से, जो बच्चों में उनको जो जज्बा नजर आ रहा है, फुटबॉल खेलने का शौक है, तो वो उसमें बड़े हैप्पी हैं वो जॉन भी, और हम भी बड़े खुश हैं कि वो हमें यहाँ पे जॉन से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गैर मुल्की कोच ने मकामी कोचेस को जदीद तकनीक पर खुसूसी लेक्चर दिया और अमली मशकें करवाईं। हिमिल्टन जॉनथन का कहना था कि फुटबॉल के फरोग के लिए 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को तैयार करना होगा। Here today to be able to see the kids come out and play. The kids have just started, so I haven't seen too much yet. But what I do see is lots of enthusiasm. It's also really refreshing to see girls playing as well and enjoying the game. एकेडमी में जेर तरबियत खिलाड़ियों का कहना था कि हिमिल्टन जॉनथन ने हमें पासिंग और बॉल कंट्रोल की नई टिप्स बताई। इंग्लैंड से कोच आए हमारे पास, कोच जॉन, ठीक है, ये हमें ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं फेम फुटबॉल एकेडमी में आके। इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। यहाँ टॉक्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, वो बहुत हाई क्वालिटी हैं और यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस भी बने हुए हैं जो काफी लाइक अच्छी ड्रिल्स कराते हैं और इससे हमारे ऊपर बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। दौरे के इख्तिताम पर मेहमान कोच ने एकेडमी के इंतजामात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान से मुस्तकबिल में बड़े फुटबॉलर सामने आएंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।